Now my dear students, in this video we will discuss our 11th sum of exercise 8.1 and the statement is in triangle ABC and DEF, these are the two triangle ABC and DEF, AB equal to DE, AB or DE equal and AB parallel DE and BC equal to EF and BC parallel EF. Okay, then and vertices ABC are joined to the vertices DEF. So this figure is formed. Then we have to show that a quadrilateral ABED. This quadrilateral is a parallelogram and BEFC is also a parallelogram, and we have to show all these points one by one. We will discuss all these points one by one. Firstly, we have to write the given and the to prove. Okay, हमें given क्या है? In this, there are two triangles and the in these two triangles, AB equal है DE के और BC equal है EF के. यही portion given है. So write down in triangle ABC and triangle DEF. In these two triangle ABC and DEF, AB equal to DE and AB parallel DE. Clear? And the second part BC equal to EF and BC parallel EF. यही given है. Now these are the only two given points. Now we have to write to prove. अब हमें क्या लिखना है? To prove. In to prove part we have to write all these 6 parts. तो आपने क्या करना है? To prove में सभी show that वाले point 6 के 6 आपको यहाँ लिखने हैं. ठीक है? And after this writing the to prove we have to write proof. हमें अब क्या करना है? अपना proof करना है. This is the first part of the proof. अब हम first part को discuss करेंगे. In first part we will show that a quadrilateral AB ED is a parallelogram. हमें क्या शो करना है कि this quadrilateral is a parallelogram. अब चेक करते हैं कि इस quadrilateral में क्या कंडीशन गिवन है. ABED में क्या गिवन है? AB और D इक्वल भी है और पैरेलल भी है. And we did this theorem in the basic terms of parallelogram, basic 8 theorems, that a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel. अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर में कोई भी एक पेयर इक्वल और पैरेलल बन जाए तो वो क्वाड्रिलेटर क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है. क्लियर? तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट. आपने फर्स्ट पार्ट में चेक करना है AB, वी हैव टू राइट दैट AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल D. AB DE के इक्वल भी है, AB DE के पैरेलल भी है. सो ABED इज द पैरेललोग्राम. तो आप लिखोगे हैंस ABED is a parallelogram. ABED is a parallelogram. क्यों? Because ABED is because a pair of opposite sides, because a pair of opposite side is equal and parallel. ठीक है ना? A pair of opposite sides is equal and parallel, hence it is the parallelogram. ठीक है ना? A pair of opposite sides is equal and parallel. किसका? इस quadrilateral का. तो ये क्या बन गया? एक parallelogram. This is our first part. Now we will discuss our second part. Second part में क्या discuss करना है? A quadrilateral BEFC is a parallelogram. हमें दिखाना है BEFC को parallelogram दिखाना है. अब my dear students BEFC में BC और EF क्या है? इक्वल और पैरेलल है. तो लिख दो यहाँ. अब आप लिखोगे BC इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल EF. ये तो गिवन है ना. BC और EF इक्वल भी है, BC और EF पैरेलल भी है. और ये BC और EF हमारे उसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स, अपोजिट साइड्स हैं, जिससे हमें क्या दिखाना है? पैरेललोग्राम दिखाना है. Hence it is a parallelogram. Then write down hence BC
बी सॉरी सी बी से स्टार्ट करो या बी सी से, एज यू विश। बी ई एफ सी, बी क्योंकि कॉन्टिन्यूटी से लिखते हैं ना, एफ सी इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज ए पेयर ऑफ opposite side is equal and parallel, ठीक है, is equal and parallel, so it is a parallelogram। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी डिस्कस हो गया। नाउ वी विल शो अ थर्ड पार्ट। अब हमें अपना क्या दिखाना है, थर्ड पार्ट। क्लियर? AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF। हमें क्या दिखाना है कि AD CF के पैरेलल भी है और AD CF के इक्वल भी है। अब चेक करते हैं, ये AD है, ये CF है। इट मीन्स मुझे अब इन दोनों लाइंस को इक्वल और पैरेलल दिखाना है। इन द थर्ड पार्ट वी विल यूज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट। देखो कैसे करेंगे। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया ABED इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो एक पेयर तो पैरेलल इक्वल गिवन था, तो सेकंड पेयर भी ऑटोमेटिकली इक्वल और पैरेलल हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमने उसको नेम दे दिया है कि इट इज अ पैरेललोग्राम, तो अब उसमें पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी, होल्ड करेंगी। क्या? कि उसका सेकंड पेयर भी इक्वल और पैरेलल बन जाएगा। ठीक है ना? तो ABED में फर्स्ट पेयर ये गिवन था, AD और B को मैंने इक्वल और पैरेलल दिखा दिया। ठीक है ना? तो थर्ड में आप क्या लिखोगे, ABED is a parallelogram, ABED and, ठीक है, ABED is a parallelogram, ये लिखो पहले, is a parallelogram। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं लिख दूं BE, this implies AD is equal to BE and AD parallel BE। तो मैंने क्या दिखाया, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये तो ऑलरेडी पेयर गिवन था, मैंने इस पेयर को इक्वल और पैरेलल दिखा दिया। क्यों? क्योंकि इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है ना? अब आगे देखो, मुझे तो इन दोनों को दिखाना है ना, अब मैं इस पैरेललोग्राम को देखूंगी। अब आप लिखोगे BEFC इज अ पैरेललोग्राम, BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पेयर तो इक्वल पैरेलल गिवन है, तो रेस्ट ये पेयर को मैं कह दूं दिस इज ऑल्सो इक्वल एंड पैरेलल। तो आप लिखोगे दिस इंप्लाइज BE पैरेलल CF, BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल CF। ठीक है ना? अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैंने लिखा AD और BE पैरेलल इक्वल है। अगर BE CF इज अ पैरेललोग्राम तो मैंने लिखा BE और CF इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है ना? दिस इज योर स्टार या फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में देखो AD BE के इक्वल है, सेकेंड में BE किसके इक्वल है, CF के। देखो AD BE के इक्वल है, BE CF के इक्वल है, BE BE सेम है, तो AD और CF भी क्या होंगे, सेम। क्लियर? तो AD और CF भी क्या हो गए, लेंथ में इक्वल। AD और BE पैरेलल है, BE और CF पैरेलल है, तो AD और CF भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, पैरेलल। क्लियर? दिस इज ऑल्सो रिजल्ट ना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल and in two lines one line is parallel to any another third line, then first or third line will be parallel. Clear? तो अब आप लिखोगे from first and second, from first and second I will remove this first and second part. ठीक है? अब आपको लिखना है from first and second, from first and second AD equal to CF and AD parallel CF. This is our third part. In third part we have to prove this ना कि AD और CF parallel और AD और CF equal. तो AD और CF parallel भी हो गए, equal भी हो गए. Okay? This is our third part. अब हम चेक करते हैं अपना fourth proof. अब हम डिस्कस करेंगे fourth proof. Fourth में क्या दिखाना है, ACFD is a parallelogram. ACFD
हमें दिखाना है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मैंने ACFD में AD और CF को अभी हमने जस्ट थर्ड पार्ट में प्रूव किया है कि दिस इज इक्वल एंड पैरेलल। अब इस पैरेललोग्राम में एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया तो ACFD क्या बन गया ऑटोमेटिकली, दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो फोर्थ पार्ट में लिखोगे आप AD, मैंने AD और CF को पैरेलल और इक्वल दिखाया ना, AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF, ये अभी प्रूव्ड किया हमने, प्रूव्ड किया है ना थर्ड पार्ट के लास्ट में। तो आप लिखोगे हैंस ACFD, हैंस ACFD is a parallelogram because a pair of opposite side is equal and parallel, ठीक है ना। A pair of opposite sides is equal and parallel, so ACFD is a parallelogram। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अवर फिफ्थ पार्ट। AC और DF को हमें इक्वल दिखाना है, AC और DF। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फोर्थ में दिखाया है कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम, तो ये पेयर इक्वल और पैरेलल था। अगर हम इसे शो कर चुके हैं कि इट इज अ पैरेललोग्राम तो सेकंड पेयर भी इक्वल और पैरेलल आ जाएगा, यस। तो आप लिखोगे AC और DF आर इक्वल। तो आप क्यों लिखोगे, क्यों इक्वल है, आप लिखोगे हेयर ACFD इज ए, क्योंकि प्रूव कर चुके हैं ना, इज अ पैरेललोग्राम। आप इसके रिस्पॉन्स में लिखो प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो दिस सिंप्लाइज AC इक्वल टू FD, AC इक्वल टू DF या FD सेम पार्ट है। दिस इज अवर फिफ्थ पार्ट। All parts of 1 or 2 lines ना, but all are easy, but you have to study all this with conceptual, because concept is power ना। आपको ये सब कुछ conceptual concept से read करना है, otherwise you forgot, आप भूल जाओगे, okay? This is our fifth part, now 6. अब हमें discuss करना है sixth part. In sixth part, we have to show that triangle ABC and triangle DEF are congruent to each other. ABC and DEF हमें दिखाना है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। मैं नेचुरली अब हम कॉन्ग्रेंसी की कंडीशंस को दिखाएंगे, ओके। तो फर्स्टली वी विल शो दैट, आप फर्स्टली वी हैव टू टेक दीज टू ट्रायंगल्स। तो मैं ये पार्ट रिमूव कर रही हूँ थर्ड। यहाँ हमारा है सिक्स पार्ट, ठीक है। आप लिखोगे जिन्हें कॉन्ग्रेंट दिखाना है पहले वो दो ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। दो ट्रायंगल ले ली, AB इक्वल टू D, ये तो गिवन है, इसका AB इसका D सेम गिवन है, गिवन, ठीक है। एंड BC इक्वल टू EF, ये भी हमें गिवन है, ठीक है। AB D के इक्वल है, BC EF के इक्वल है। कोई एंगल की तो मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, बट हमने प्रूव किया AC और DF भी इक्वल है, AC इक्वल टू DF। ये कहाँ प्रूव किया है, ये हमने फिफ्थ पार्ट में प्रूव किया है, AC और DF सेम। आप यहाँ लिख दो प्रूव्ड, कि हमने अभी ये प्रूव किया है, ये प्रूव्ड है। तो फर्स्ट ट्रायंगल की 3 साइड्स are equal to the corresponding 3 sides of second triangle, then these two triangles are congruent by using SSS congruence rule। तो आप लिखोगे by SSS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle DEF। प्रूव हो गया, क्लियर? If there is any doubt, then you can comment me in my comment box. Thank you, my dear students. Now you have to write here hence proved. आपके सब कुछ प्रूव हो चुके हैं, तो लास्ट पार्ट में आपने लिखना है hence proved, ठीक है।